Good morning, everyone. Today we are going to discuss two very typical problems of latent heat of the substance. What is the internal latent heat? What is the external latent heat? Why the internal latent heat is always greater than the external latent heat? What is the formula to be used to find out the external latent heat? And even if internal latent heat is asked, external latent heat is compulsory because you have the formula of external latent heat only. So I'm just giving you a quick revision. ये problem मैंने किया था last time, right? But I'm still doing it because very important and favorite problem of the examiners. Book बंद रखो बेटा, book बंद रखो. What is Clausius law? What is Clausius law? About Clausius law, do we see that dq is equal to du plus dw या तो de plus dw, de या तो du is internal latent heat and dw is the external work done, right? Now when we talk about internal latent heat and we talk about external latent heat, it is also written as sometimes dq is equal to dqi plus dqe, internal latent heat and external latent heat. Now when we go for heat energy to be supplied to the substance to change the state of the substance, that means from solid to liquid at its melting point and from liquid to gaseous at gaseous state at its boiling point, then do we use Q is equal to ml? So ml is equal to m times li plus m times le, provided, I have been telling you this again and again, provided all of them are in the same system of units. That means this is kilocalorie per kilogram, then these also should be kilocalorie per kilogram, these also should be kilocalorie per kilogram. If this is joule per kilogram, and if this is kilocalorie per kilogram, and if this is kilocalorie per kilogram, then kilocalorie per kilogram has to be converted into joule, or else joule per kilogram has to be converted into kilocalorie. J, again let me remind you, J is mechanical equivalent of heat or conversion factor or Joule's constant and is required when left hand side and right hand side are not in the same units. Not. Right? It is something like this. You demand the payment in dollars, but I have currency other than dollars. That means conversion factor is required. Your demand is in dollars, I am paying you in dollars. Your demand is in rupees, I am paying you in rupees. Your demand is fulfilled, right, by whatever you wanted. So conversion factor is not required. M is gone, yes or no? That means L is equal to Li plus Le, yes or no? So the latent heat is to be divided into two parts, the internal latent heat in the external latent heat, right? Now very important is this, very important is this, very important is this, because most of the times when they ask you external latent heat, we use this formula. But if internal latent heat is asked, then also we use this formula only. dQe, is it dW? Right? dQe is m times Le for sure. dQe is m times Le for sure. dW याद करो बेटा, अप्रूव किया था PdV, याद करो PdV. This formula is valid. This formula is valid when left hand side and right hand side in the same system of units. When both left hand side and right hand side are in the same system of units. Right? But most of the times that is not the case. Usually dW, which is equal to, let me write it here only, usually dW is equal to PdV is in joule. This one. dW is equal to PdV is in joule. Now M into Le and M into Le is in kilocalorie. Let me prove it. What do I mean by this? This L is 80 kilocalorie per kg for whom? Is it latent heat of fusion of ice?
और LV what is it 540 kilocalorie per kg, yes or no? 540 kilocalorie per kg, मतलब this is in kilocalorie per kg and this is in kg gone, that means this full thing is in kilocalorie, that means this equation is not balanced, right? Usually ऐसा होता है most of the problems में, usually. So what is to be done, and therefore the final most formula is choice is yours बेटा. बोलो क्या करना है? Final most formula is, या तो आप लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड को जूल में कन्वर्ट करो, या तो राइट हैंड साइड को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करो, आइथर और, या तो इसको जे से मल्टीप्लाई करना है, या तो इसको जे से डिवाइड करना है. बात तो एक ही है, कोई भी एक. सो कैन आई से m into LE is P into dV upon J is the final most formula. And mind you, two very important problems come on this, right? ये पूरा स्टोरी अगर आपको एक बार याद नहीं भी रहेगा ना, तो ये सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रीजन. even if Li is asked, Le becomes compulsory for us. Why? Because you don't have the direct formula for Li. Usually the problem comes in this, right? So even if Li is asked, Le becomes compulsory for us. ये समझा बेटा? And there are two very standard problems on this. Board exam point of view also, mind you. There are two very standard problems on this. One is ice to water, and other is water to steam. One is ice to water and other is water to steam, right? ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स बेटा मैं बैक टू बैक सॉल्व करता हूँ, राइट? एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ था, बट अ क्विक रिवीजन, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दिस स्टोरी देन इट इज अ वेरी लेंथी प्रॉब्लम बट कैन बी डन in few very simple steps, right? Are we now on assignment number 4, I think so. Assignment number 3, right? पहले मैं ice to water वाला प्रॉब्लम करता हूँ और बाद में water to steam वाला प्रॉब्लम रिवाइज करता हूँ. Are you on problem number 48? Are you on problem number 48? The problem says 1 kilogram of ice occupies 1.1 into 10 to minus 3 meter cube at normal pressure. What is the meaning of normal pressure, beta? What is the meaning of normal pressure, everyone? In physics, yes. In physics, normal pressure is P0 is 1.013 into 10 to the power plus 5 Newton per meter square. Right? Volume 1 is given as 1.1 into 10 raised to minus 3 meter cube. Volume 2 is given as 1.0 into 10 raised to minus 3 meter cube. Something very important to be observed. Right? Usually anything expands on heating and contracts on cooling. But this is for ice to water. इसका मतलब here it is anomalous behavior. सोचो बेटा, here it is anomalous behavior. So what is happening? Therefore V1 is found to be less than V2. You know why this is necessary? Because when we use the formula P dV by G, dV is change in volume, is final volume minus initial volume, and that final volume minus initial volume here will come as a negative value. Right? That is one very important point to be noted. Latent heat of fusion of ice obviously is 80 kilocalorie per kilogram. तो ये क्या हुआ बेटा? L is equal to LF is equal to 80 kilocalorie per kg. Yes or no? very important. ये पूरा बैकग्राउंड में रेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूँ. ध्यान से सुनो बेटा,
ध्यान से सुनो. Can I say we know that? Can I say we know that? LE is equal to PdV upon J. अगर मैं M शिफ्ट कर देता हूं तो yes और no? समझा कि बाउंसर गया. कहां से आया ये? कहां से आया? फ्रॉम स्टार रेस टू 10. बोला ना मैंने, ये फॉर्मूला याद रखने का एकदम अच्छे से. ये था MLE इज इक्वल टू PdV बाई J. तो मुझे सिर्फ LE ढूंढना है. सो इज इट PdV अपॉन MJ? यस और नो? सो व्हाट इज LE? व्हाट इज LE? इज इट P into फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन MJ? मतलब एक बात बेटा हमेशा ध्यान में रखो, Li या तो LE का सम, अगर आइस टू वाटर के लिए है, या तो Li एंड LE का सम वाटर टू स्टीम के लिए है. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर. आई रिपीट, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आइस टू वाटर, प्रॉब्लम नंबर 48, राइट, एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट Li और LE, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस, बिकॉज एक बार LE मिल गया ना, देन Li इज वेरी सिंपल. L इज Li प्लस LE, राइट. तो जो मुझे LE मिला वो मैं L में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे Li मिलेगा. कॉमन सेंस, इधर ही लिखता हूं देखो. अगर मुझे LE मिला, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस. सोचो, क्योंकि अपने पास इसका फॉर्मूला है, इधर लिखा है मैंने. इवन इफ Li इज आस्क्ड, L इज कंपल्सरी फॉर यू. इसका कमेंट ये मैंने इधर लिखा, बराबर, कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट LE. और LE का फॉर्मूला है अपने पास, LE का फॉर्मूला है अपने पास. एंड देयरफॉर व्हाट विल बी Li? व्हाट विल बी Li? इज इट L माइनस LE? अगर ये आइस टू वाटर का सम है तो ये 80 है, और अगर ये वाटर टू स्टीम का सम है तो ये 540 है. आई रिपीट, अगर ये आइस टू वाटर का सम है तो ये 80 है, और अगर ये वाटर टू स्टीम का सम है तो ये 540 है. यहां तक समझा बेटा? Super duper sure. Back to that sum. Back to that sum. We are on 48th question. This is 1.013 into 10 to the power plus 5. V2 minus V1 is 1 minus 1.1. 1 minus 1.1. It is going to be a negative number. It is going to be a negative number. 10 raised to minus 3 common. Mass of ice is taken as 1 kilogram and J value is 4,200. Yes or no? 1.013 into 10 to the power 5 into V2 minus V1 upon mg. राइट, तो न्यूमरेटर हो गया. ध्यान से देखो बेटा, माइनस, क्योंकि माइनस साइन यहां से आएगा. व्हाट इज दिस वैल्यू? माइनस 0.1, which is minus 10 raised to minus 1. So this is 1.013, माइनस साइन मैंने बाहर लिया, 10 raised to plus 5 into 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 3 upon 4,200. That means 42 into 10 raised to plus 2. मैं 10 के सारे पावर साथ में ले रहा हूँ, 10 के सारे पावर साथ में ले रहा हूँ. तो मेरा न्यूमरेटर हो गया 10 raised to 5, 10 raised to minus 4, which is 10 raised to plus 1, 10 raised to plus 1 upon 10 raised to plus 2. That is 10 raised to minus 1. तो मेरा न्यूमरेटर हो गया बेटा माइनस 0.1013 अपॉन 42. फिर मैंने हमेशा क्या सिखाया था? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाओ जब तक आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो जाता. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, न्यूमरेटर हो गया 1.013. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, न्यूमरेटर हो गया 10.13. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000, डिनोमिनेटर हो गया 101.3. बराबर. सो दिस इज माइनस 101.3 अपॉन 42. ये जो 1000 बच गया ना, इसको मैं 10 raised to minus 3 लिख रहा हूं. Yes everyone, my solution continues here, right? So this gives me LE is equal to minus 0. Right? No, sorry, 42 2s are 84, right? ये मेरा आंसर आएगा 2.4 approximately into 10 raised to minus 3. मतलब मेरा LE का आंसर आएगा minus 0.0024. Minus 0.0024. This is a super standard value at NTP. Super standard value at NTP means you can remember this also, right? In fact, ये जो 4 एंड रिजल्ट्स आएंगे ना मेरे, ice to water, Li and Le, water to steam,
Li and Le, ये चारों के चारों स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने दिए हुए एंड दे आर फॉर 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस, दे आर फॉर 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा Li का मेरा आंसर आया -0.0024, एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 2412। ये मेरा आया एक्सटर्नल लेटेंट हीट, ये मेरा आया एक्सटर्नल लेटेंट हीट। माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन एनोमेलस बिहेवियर की वजह से आया। माइनस साइन क्यों आया? एनोमेलस बिहेवियर की वजह से आया। इज दैट वेरी क्लियर? नो नीड टू राइट बेटा, वेरी ब्यूटीफुली गिवन इन आईपैड नोट्स वंस अगेन। मैं जब कुछ सिखाता हूं बस उसके ऊपर एकदम अच्छे से फोकस करो, राइट? देयरफॉर, क्योंकि आपका जो 45 to 55 सारे सम्स है ना इसी के ऊपर है। ये मैंने 1 किलोग्राम के लिए सॉल्व किया, वो लोग 5 किलोग्राम के लिए पूछे, तो 5 किलोग्राम के लिए पूछा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का, और जो अपना Li आएगा उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करने का। L समझा, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। They will not give you this, they are expecting you to remember this. LF and LV are to be remembered. What is LF? Latent heat of fusion of ice. How much is that? 80 किलो कैलोरी पर केजी। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है बेटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड वैल्यूज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इज इट 80? एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम, इज इट 540? और ये कौन से यूनिट्स में है? केकाल पर केजी, केकाल पर केजी, मतलब दे आर इन थर्मल यूनिट्स, दे आर इन थर्मल यूनिट्स। एल क्या हो जाएगा? Li क्या हो जाएगा बेटा? Li L माइनस Le, 80 माइनस 0.002412, क्योंकि ये माइनस आया, इसका मतलब 80.002412 केकाल पर केजी। मतलब सोचो, इधर इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर है। 80 रुपीज कमा रहा है, 80.002412 स्पेंड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है सपोज, ये बराबर। तो ऑन हीटिंग ये एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन ये पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर एक्सपांड होता है। मतलब ये सपोज इतना पीस था, लेट अस अज्यूम इसका वॉल्यूम है x सेंटीमीटर क्यूब, और इसको होना है x प्लस डी एक्स, इसको होना है x प्लस डी एक्स। तो उसके बदले क्या हुआ? x माइनस डी एक्स एंड देन x प्लस डी एक्स। मतलब ये जो भी वॉल्यूम है ये डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होके फिर ऐसा हो रहा है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ आइस और वाटर के क्वेश्चन में ही होता है, ये सिर्फ आइस और वाटर के ही क्वेश्चन में होता है, बिकॉज इट बिहेव्स इन एनोमलस वे, राइट? नाउ समटाइम्स when they delete the syllabus in a stupid way, this is the best example of that. फिजिक्स में उन्होंने बोला है कि एनोमलस बिहेवियर मत पढ़ाओ, चलेगा। अगर एनोमलस बिहेवियर नहीं पढ़ा तो फिर ये भी निकालो सिलेबस में से। बच्चे को कैसे मालूम पड़ेगा कि वॉल्यूम कम क्यों हुआ, कैसे हुआ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो ये बोलने के लिए, तुम लोगों को अच्छा लगाने के लिए। देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पोर्शन का तो कम किया, बायो में भी कम किया, इसलिए फिजिक्स में भी कम किया। स्टूपिड डिलीशन नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोग टेबल्स फ्रॉम 1 to 30 है, और अगर तुम लोग 27 का टेबल सिलेबस में से निकालते हो तो 28, 29, 30 का भी निकालो, या तो फिर निकालो ही मत। डोंट डिलीट समथिंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक्स आर डिफरेंट। तो पहले ये डिलीटेड पोर्शन में लिखा होगा, लेकिन बेटा एनोमलस बिहेवियर मालूम होना चाहिए। या मैं एक ही प्रॉब्लम इतना आराम से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मालूम है? मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम से यहाँ तक सब कुछ से, यहाँ तक सब कुछ से, यहाँ तक सब कुछ से मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा वाटर टू स्टीम का, जो मैं ऊपर जाऊंगा वापस। मोस्टली इट विल बी 46th प्रॉब्लम। 46th and 47th are water to steam. 48 and I think 49 must be ice to water. 48 and 49 ice to water. कोई बात नहीं, हाँ, water to steam. 50, 51, 52 लाइन से वाटर टू स्टीम का हम लोग जो करने वाले ना वो 1 किलोग्राम का है।
राइट आप लोग जो प्रॉब्लम पढ़ रहे हो 49 पहला लाइन पढ़ो, खाली पहला लाइन, सिर्फ पहला लाइन। 5 kg, तो अपने पास जो भी डेटा है ना बेटा, जो भी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने का। एल कितना है 80, कितने किलोग्राम के लिए 1, therefore LE for 1 kg and therefore LI for 1 kg। अब मान लो ये प्रॉब्लम मैंने 5 kg के लिए कन्वर्ट किया, तो बेटा दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब ये 540 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा, मतलब ये आंसर भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। दैट इज इट, कुछ नहीं करना है। एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज लाएगा, व्हाट इज द आंसर फॉर 2 किलोग्राम, व्हाट इज द आंसर फॉर 10 किलोग्राम। मुझे जो भी आंसर पूछा मैं पहले 1 किलोग्राम के लिए सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है वो कितने किलोग्राम के लिए, तो 1 किलोग्राम का इतना आंसर, तो 2 किलोग्राम का कितना, 5 किलोग्राम का कितना, यूनिटरी मेथड, राइट। 1 रुपए का एक चॉकलेट, 5 रुपए का कितना, बार्गेनिंग नॉट अलाउड, 5 पे 2 फ्री नॉट अलाउड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम आराम से 48th प्रॉब्लम, एकदम आराम से 48th प्रॉब्लम। क्वेश्चन रीड करो, सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, उसका सिंपल रीजन बोलता हूँ। आज मैं जितने भी लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जितने भी, आज मैं घर पे जाके इसे आईपैड नोट लिखता हूँ, 5 या 6 पेजेस में लिखूंगा और उसके प्रिंट आउट देता हूँ मैं आप लोगों को वेडनेसडे को, बिकॉज लेंथी प्रॉब्लम में वी कैन सेव टाइम। आपको खाली याद क्या रखना है, आई कैन स्टार्ट माई प्रॉब्लम ऑलवेज फ्रॉम हियर, आई कैन स्टार्ट माई प्रॉब्लम ऑलवेज फ्रॉम हियर। Pressure is known to me, initial and final volumes are known to me, M value is known to me, J value is known to me. So I can first find out LE. अगर मुझे LE नहीं भी पूछा है तो भी मुझे LE ढूंढना पड़ेगा, because then only I can find out LI. Therefore remember, even if LI only is asked, LE becomes compulsory for you, right? Problem number 49, sorry ये 48 था। एकदम आराम से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो, बोर्ड वर्क देखो, क्योंकि बाद में मैं यही बोर्ड वर्क रब करके इधर 46 नंबर लिखूंगा, सिर्फ ये नंबर्स चेंज करूंगा, 46 का आंसर लाऊंगा, 47 का आंसर लाऊंगा, फिर ध्यान से बोलूंगा 50, 51, 52, 53। देखो, पढ़ो, सोचो, समझो, हो गया। रीजन वो 5 किलोग्राम के लिए, समझा बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 बोर्ड वर्क ध्यान से पढ़ो, सिर्फ एक दिन के लिए रुक जाओ। आज मैं घर पे जाके ये सारे सॉल्यूशंस आईपैड में लिखता हूँ, राइट, एंड आई विल गिव यू ऑल दी सॉल्यूशंस का प्रिंट आउट, राइट। तो उधर लिख के रखो, फॉर फेयर वर्क ऑफ लेंथी क्वेश्चंस फ्रॉम 45 to 55, for fair work of lengthy questions from 45 to 55 of this assignment, refer iPad notes, refer iPad notes। अब आपके iPad notes का लास्ट पेज नंबर क्या है, 9। हाँ, तो उधर लिखो refer iPad notes पेज नंबर 10 onwards, refer iPad notes पेज नंबर 10 onwards। वो पेज नंबर 10 में आज घर पे जाके लिखता हूँ, ओके। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 रिवाइज करो, 3 minutes फॉर यू, सुपर इंपॉर्टेंट। 48 को 10 स्टार मार्क करो, 46 को 10 स्टार मार्क करो, 48 को 10 स्टार मार्क करो। हाँ, वो 46 में वापस करके बताऊंगा बेटा, रिवाइज हो जाएगा ना एक बार अपने। या H2 वाटर का सम है, 46 वाटर टू स्टीम का सम है, तो वो मैं रिपीट करके बताता हूँ। V1 is more than V2 लिखना चाहिए। Thanks for correcting me. Thanks for correcting me. V2 is less than V1. I am so sorry. Correct. Thank you so much. Yes. Because then only DV का answer negative आएगा। You should have corrected me before only. I never get this stuff. Thank you. It was a mistake.
लास्ट 20 ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो 46 क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आ चुका। एक बार आइस टू वाटर, फिर एक साल स्किप किया और कुछ पूछा, फिर एक बार वाटर टू स्किप, वापस एक दो साल स्किप किया, वापस आइस टू वाटर, एक बार एल आई पूछा, एक बार एल ई पूछा, सिमिलर। सो वेरी पॉपुलर एंड फेवरेट क्वेश्चन। 48 हो गया बेटा। अभी इसका सिमिलर किधर तो एल आई पूछा होगा, जरा ढूंढो उसको। सिमिलर ये एल आई था ना, हाँ तो ठीक है। उसमें आपके पास जो नेगेटिव ऑप्शन है ना, पहला वाला ऑप्शन, वो ऑप्शन कब आएगा? इफ एल ई इज आस्क्ड, राइट। ऑप्शन ए के बाजू में लिखो इफ एल ई, इफ एल ई। आपका आंसर हो गया सी, सिंस एल आई। सी के बाजू में लिखो सिंस एल आई, और दिल्ली के बाजू में लिखो एल एफ, बराबर ना। लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। So latent rate of fusion of ice is 80. Everybody here, latent rate of fusion of ice is 80, of which LE is minus 0.002412. Why this value is coming as negative? Because of anomalous behavior of water, and therefore Li is L minus Le, 80 minus 0.002412. That means that value is 80.002412. बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 48 टिक करो बेटा। अभी मैं 46 पे जा रहा हूं, Are we on 46? It must be a question of water to steam. चलो concentrate. If 1 gram of water is having volume of 1 centimeter cube, it occupies 1671 centimeter cube. Yes or no? So can I write this as 1 centimeter cube is 1 into 10 raised to minus 6 meter cube. 1 centimeter is 10 raised to minus 2 meter. So 1 centimeter cube is 10 raised to minus 2 centimeter, the whole cube. Then is 10 raised to minus 6. 1671 centimeter cube is 1671 into 10 raised to minus 6 meter cube. Right? I'm sure यहाँ पे LV दिया होगा 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और अगर नहीं भी दिया तो यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। LE पूछा होगा 46 क्वेश्चन में, LE पूछा होगा, चेक करो प्लीज। इज इट LE? यस और नो? तो बेटा यहाँ तक मेरा सब कुछ सेम, ये सब में भी मैं LI और LE दोनों ढूंढूंगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इवन इफ LI इज आस्क्ड, LE becomes compulsory for you. So is it 1.013 into 10 to the power 5 into 1671? Let me write it here only. 1.013 into 10 to the power 5. Volume 2, 1671 minus volume 1, 1. 10 raised to minus 6 common upon mass is 1 and J value is 4200. So that gives me 1.013 into 10 to the power 5, 10 to the power minus 6 minus 1. Yes or no? So and this is 1670. So this is 1670 into 10 to the power minus 1 upon 42 into 10 to the power plus 2. तो ये एक 0 गया 10 raised to minus 1 के साथ. Yes or no? My numerator or else my denominator, is it in okay, calorie per gram में पूछा हुआ है, no problem. So I am converting this into kilocalorie. So finally when I solve this question, this answer will be 42 forza. This answer is coming as 40.27 कैलोरी पर ग्राम. उसको मैं किलो कैलोरी पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के ये प्रॉब्लम दिया हुआ है CGS system. If I want to solve this in CGS system, I can keep it like this only, but then pressure value I will write this is 1.013 into 10 raised to 6. Ultimately my final answer is coming as what we solved it last time. This final answer is coming as, so you can say similar to 48th question. Similar to 48
8th क्वेश्चन, अपना एली का आंसर आएगा 40.27 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, राइट? एंड देयरफॉर Li will be 540 minus 40.27. This will be 499.73 किलोग्राम पर केजी. ये अपना 46th एंड 47th दोनों क्वेश्चन हो गया. 46th एंड 47th क्वेश्चन दोनों हो गया. अब एकदम ध्यान से सुनो. Therefore मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख रहा हूं, राइट? सुपर स्टैंडर्ड वैल्यूज, यू कैन रिमेंबर देम फॉर एवर. स्टैंडर्ड वैल्यूज, माइंड यू, स्ट्रिक्टली फॉर 1 किलोग्राम. LF is 80, LV is 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. दो पार्ट में स्प्लिट हुआ. पहला पार्ट कंपल्सरीली आएगी. वैल्यू इज माइनस 0.002412. वैल्यू इज 40.27. Therefore, value is Li is 80.002412. Yes or no? And therefore, value is Li is equal to 499.73. आप इसको approximately 40 याद रख सकते हो, और आप इसको approximately 500 याद रख सकते हो. आप इसको approximately याद नहीं रख सकते because एकदम close values है, right? And the common point to be noted, Li is always greater than Li. Li is always greater than Li. समझा? तो इसमें बेटा टोटली 8 प्रॉब्लम्स आ गए. 1 2 3 4 5 6 7, और इसके आगे हम लोगों ने कमेंट दिया था कि why Li value is negative when you go for the problem of H2 water. It is because of anomalous. तो सोचो प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे 2 ही सॉल्व किया, बट इन वेज मैंने 8 से 10 MCQ सॉल्व किया. आप खाली अभी सीक्वेंस देखते जाओ. 46 और 47 देखो, ये प्रॉब्लम हो गई. 46 एंड 47 चेक करो. असाइनमेंट नंबर 3 और 4. असाइनमेंट नंबर 3 और 4. असाइनमेंट नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर्स 46 एंड 47. असाइनमेंट नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 48. और इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, वो शायद 5 किलोग्राम के लिए होंगे या तो 2 किलोग्राम के लिए होंगे. पढ़ते जाओ लाइन से. मतलब एग्जाम के टाइम पे स्मार्टली 2 ही प्रॉब्लम्स करने का. कौन सा? 46 एंड 48. 46 48 दोनों को *10 मार्क करो, और बाद में एकदम ऊपर पेज नंबर 53 के एकदम ऊपर लिखो for standard values to be remembered. For standard values refer iPad notes. For standard values refer iPad notes. Page number कौन सा पेज है? 6. पेज नंबर लिखो किसका नोट सही. For standard values refer iPad notes. पेज नंबर 6. बराबर. अब ये पूरा समरी बेटा पढ़ो 2 मिनट के लिए. पेज नंबर 6 iPad notes, ध्यान से पढ़ो. यस, पेज नंबर 6 समरी पढ़ो. And after that, please check. Once you do that, please check. क्वेश्चन 45 भी हो गया. 45 इधर है बेटा, ये फॉर्मूला. क्वेश्चन 45 इज दिस, प्लीज चेक. अपना आंसर आया था A and C बोथ.
45 में अपना आंसर आया था ए. If mechanical units, if mechanical units means you want the answer in joule. When you want the answer in joule, don't divide by J because you want J to remain. When you want the answer in kilocalorie, that means you want joule to go, means divide by J. Check one by one options A and C. Question number 45 sorry. 45 में A correct है, 45 में C भी correct है. Therefore 45 में A और C दोनों correct है. That means your answer is Delhi. So लाइन से बेटा 45 का D हो गया आंसर. 46 अभी सॉल्व किया. योर आंसर इज 40.27 कैलोरी पर ग्राम या तो किलो कैलोरी पर किलोग्राम. बात तो एक ही है. Therefore 47 हो गया. 499.73 हियर यू आर. प्रीवियस क्वेश्चन हाँ ये रहा करेक्ट. 48 क्वेश्चन हो गया. 49th क्वेश्चन इज फॉर 5 किलोग्राम. 47th का आंसर शुड बी इंटरनल लेटेंट हीट पूछा है बेटा. 47th में इंटरनल लेटेंट हीट पूछा है. देयरफॉर सी. एक काम करो ए के ब्रैकेट में लिख के रखो इफ एक्सटर्नल लेटेंट हीट. 47th में ए के ब्रैकेट में लिख के रखो इफ एल ई इज आस्क्ड. मतलब एक ही प्रॉब्लम में वो लोग हाँ ऊपर भी है वो करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट बॉम्बे ऑप्शन एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम. सो आई रिपीट द आंसर्स. 45 दिल्ली, 46 C, 47 C, 48 C है ना. प्रॉब्लम दो ही बोर्ड पे सॉल्व किया मैंने लेकिन लाइन से अपने 8-10 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. 49 क्वेश्चन चेक करो बेटा. फर्स्ट लाइन हीट इज गिवन टू 5 किलोग्राम ऑफ वाटर राइट. 5 किलोग्राम ऑफ वाटर मतलब ये कितना हो गया 545 2700 राइट. उसमें से 45 200 goes towards external latent heat and therefore 2500 goes towards internal latent heat. अभी प्रॉब्लम नंबर 50 पढ़ो. 49 लास्ट लाइन पढ़ो. लास्ट लाइन इज इट राइज इन इंटरनल एनर्जी. 1 किलोग्राम का कितना 500 तो 5 किलोग्राम का कितना 2500 राइट. तो उधर छोटा सा खाली कमेंट लिख के रखो. फॉर 1 किलोग्राम 500 therefore for 5 kilograms 2500. इसका मतलब बेटा 50th क्वेश्चन भी हो गया. उसमें उन्होंने चेंज इन वॉल्यूम एक्सटर्नल वर्क डन पूछा है. शुड इट बी 45 अभी उधर क्वेश्चन रिस्की क्यों है मालूम है. उन्होंने एक ऑप्शन 200 दिया और एक ऑप्शन 190.5 दिया. अभी वापस प्रीवियस क्वेश्चन पे जाओ. 5th लाइन पढ़ो. 5th लाइन the supplied energy was 538.5 that means it was not 540. That means it was not 540. That means 38.5 फाइजा करना है. 38.5 फाइजा 540 राउंड फिगर लिया हम लोगों ने. उन्होंने 538.5 दिया है राइट. सो क्वेश्चन नंबर 50 में it should be 38.5 into 5. That's why it is 190.5 not 200. समझा. ये जब हम लोग लेते देखो मैंने एकदम इधर क्लियरली अप्रोक्सीमेशन का साइन लिखा है. यस और नो. क्वेश्चन नंबर 51 इन द अबव क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी. आप ध्यान से देखो क्वेश्चन 49 के ऑप्शंस देखो बेटा. सारे के सारे किलो कैलोरी में है लेकिन 51 के आंसर में किलो कैलोरी पर किलोग्राम में है. तो 49 का आंसर क्या आया था 2500 किलो कैलोरी फॉर 5 किलोग्राम्स नो. तो अभी किलो कैलोरी पर किलोग्राम पूछा है. देयरफॉर डिवाइड बाय 5. वही क्वेश्चन में खेल रहे हैं वो लोग. बस 1 किलोग्राम का इतना तो 5 किलोग्राम का कितना. अभी 5 किलोग्राम का इतना है देयरफॉर 1 किलोग्राम का कितना. कैसे दिमाग घुमाते अपना समझा. अपना दिमाग कैसे घुमाते समझा. क्वेश्चन सेम होता है. 1 किलोग्राम के बदले टेक्टफुली 2 किलोग्राम कर दिया 5 किलोग्राम कर दिया. एक स्टैंडर्ड याद रखिएगा 1 किलोग्राम के लिए कितना therefore 5 kilogram के लिए इतना. Is that clear? तो आंसर ऑफ 51st क्वेश्चन इज ए. So in the 49th one, you directly took 500, no? But it is not. या सॉल्व करके देखना पड़ेगा. 49 को बेटा ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा. खाली फर्क क्या आएगा इधर into 5 आ जाएगा बस. मतलब वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा. 49 में atmospheric pressure they taken as 10 raised to 5. So for other questions. राउंड फिगर है हाँ. हम लोग लेते हैं 1.013 into 10 to 5. उन्होंने 10 to 5 दे के आपका जॉब और भी सिंपल कर दिया. तो when we have to calculate and they haven't given this value, we take 1. Yeah, when the atmospheric air pressure is not given,
the standard value is 1.013 into 10 to the power 5. But if the options are far, 1.013 can be rounded off to 1. 1.01 है ना वैसे भी. Then you can round it off to. Options close है तो पंगा है. मैं पहले इसको स्टैंडर्ड वैल्यूज में ही सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि एलटीपी लिखते हैं ना लोग, इसलिए मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू ही लेना पड़ेगा. In fact, in problem number 49, by giving the standard pressure is 10 to 5, they have given you a favor. But they took back that favor by giving a ganda number 538.5. So एक हाथ दिया, एक हाथ वापस ले लिया. Right? Question number 51, answer is A. Question number 52, answer is Delhi. अभी ध्यान से देखो बेटा, 51 और 52 है ना, उसके बाजू में कर्सिव ब्रैकेट करके बोलो for 1 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 कितने किलोग्राम के लिए था? 1 किलोग्राम के लिए. एंड देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 कितने किलोग्राम के लिए था? फॉर 5 किलोग्राम. रेड पेन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 दे वर फॉर 5 किलोग्राम एंड क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 दे वर फॉर 1 किलोग्राम. बेटा घुमा फिरा के प्रॉब्लम तो एक ही हुआ ना, मतलब आपको अगर 1 किलोग्राम के लिए वैल्यू याद है तो 5 किलोग्राम के लिए सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 5. यस और नो? प्रॉब्लम नंबर 53 में एक छोटा सा हिंट देता हूं बेटा, एकदम सेम प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 53 और एग्जाम में कभी नहीं पूछते वो लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब पूछते थे वो लोग एग्जाम में लॉग बुक देते थे, कैलकुलेटर का सब्स्टिट्यूट. लॉग बुक मींस इवन इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर यू कैन डू द कैलकुलेशंस, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 53 में एक छोटा सा कैच है. वॉल्यूम 2 शुड बी रिटन एज मास अपॉन डेंसिटी 2 एंड वॉल्यूम 1 शुड बी रिटन एज मास अपॉन डेंसिटी 1. तो जब आप मास अपॉन डेंसिटी 2 और मास अपॉन डेंसिटी 1 लोगे तो ये डिनोमिनेटर का मास कैंसिल हो जाएगा और आपका पूरा प्रॉब्लम डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. घुमा फिरा के आंसर तो सेम ही आना है, बिकॉज स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ latent heat of fusion of ice and latent heat of vaporization of steam cannot change. Anomalous behavior of water cannot change. Between 0 and 4 टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ने के बजाय कम होता है, therefore डेंसिटी बढ़ता है. Is that clear? प्रॉब्लम नंबर 53 में उन्होंने सिर्फ क्या किया है? The problem is given in terms of density instead of volume. कमेंट लिखो. क्वेश्चन नंबर 53 में कमेंट लिखो. This problem is similar to. This problem is similar to 48th. This problem is similar to 48th. The only change brought about is it is converted in terms of density. It is converted in terms of density. Right? तो बेटा उसका आंसर सेम आएगा. राइट? और दूसरी बात, ये लिक्विड वाटर नहीं है. चेक करो, ये लिक्विड वाटर नहीं है, मतलब इसमें आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आएगा. V2 minus V1 will be a positive value, इसलिए आपका आंसर तो 80 नहीं आएगा, 80 से ज्यादा नहीं आएगा, 80 से कम आएगा. Right? But they don't ask this problem now, because to solve this problem you compulsorily need either a calculator or a logbook, and logbook they don't give. Problem number 53, now they don't ask, because to solve that problem, right, either you need logbook or you need calculator, and they don't give both. Standard liquid है ना water, तो problem ही नहीं है ना, क्योंकि standard answers है. Okay. Problem number 54. प्रॉब्लम नंबर 54. अभी इसमें बेटा दो स्टैंडर्ड चीजें जो शायद स्कूल में की थी आप लोगों ने. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑन बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट? एज प्रेशर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. एज प्रेशर इंक्रीजेस melting point decreases but boiling point increases. Best example, when you go to some wedding, you must have seen some sculptures made out of ice.
and the whole day it is there in sunlight, but it doesn't melt because they keep sprinkling salt on that. So that is the effect of impurity on melting point and boiling point. So when you go for increase in pressure, melting point is decreasing but boiling point is increasing. When you add impurities, normally the impurity to be added are standard salts which we use in day-to-day life, ammonium chloride, sodium chloride and so on. So again, when you add impurities, again melting point is found to be decreased, boiling point is found to be increased. I repeat, pressure increases, ये दोनों दिया हुआ है बेटा आपके iPad notes में, कोई तो एक छोटे से पैराग्राफ में दिया हुआ है. If you can find it for me. Page 6 left side पे, हाँ, page 6 left side पे. What is the effect of pressure? Pressure increases, melting point decreases. Pressure increases, boiling point increases. What is the effect of impurities? Soluble impurities like common salt, sugar, etc. When you add this in the liquid, melting point is found to be decreased, boiling point is found to be increased. अपना लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर 4 में बाकी था, जरा चेक करो प्लीज. पहले तो ये क्रैक करो, पहले 54th क्रैक करो. With increase in boiling point of water, the latent heat will increase because pressure must have increased. 1 minute. Pressure increases, that means external latent heat must have increased. On increasing the pressure, what happens to boiling point? Boiling point increases. Boiling point increases means pressure has increased. Pressure has increased, so LE has increased. L has increased. 54th question. हाँ, जरा practice paper 4 पे चले जाओ please. Temporary practice paper 4 पे चले जाओ please. अपना third question pending था, third. Melting point of ice decreases with increase of pressure. Practice paper 4 question number 3. Melting point of ice decreases with increase of pressure. iPad notes पे कौन से पेज पे मिला ये? Page 6. लिखो. iPad notes page 6. Are you on the same practice paper? 14th. When the pressure on water is increased, boiling point of water should be increased. Higher. So iPad notes page 6 again. Question 16. The freezing point of liquid decreases when the pressure is increasing. Why? आराम से पढ़ो बेटा. Why does this happen? The freezing point of liquid, मतलब melting point of ice, it is decreasing instead of increasing. Why does this happen? Because of anomalous behavior. तो पहला कमेंट होना चाहिए बिकॉज ऑफ एनोमेलस बिहेवियर. अच्छा, एनोमेलस बिहेवियर में क्या होता है? व्हेन इट मेल्ट्स, राइट, इट शुड एक्सपांड बट उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड व्हेन इट फ्रीजेस, इट शुड कॉन्ट्रैक्ट बट उसके बदले एक्सपांड होता है. सो आंसर शुड बी ऑप्शन 1. 16th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा है. हाँ, लेकिन जब बेटा उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, दैट मीन्स इट मस्ट बी बिहेविंग इन एनोमेलस वे. तो भले उन्होंने वाटर नहीं बोला है, लेकिन ये तो बोला है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज देयर. सो 16th में मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट आना चाहिए एनोमेलस बिहेवियर. तो थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा था. सर 6th क्वेश्चन. एक मिनट, हाँ बेटा, पहले ये 3 क्रैक कर लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन समझा, 14 समझा और 16 समझा. 6th बाकी था क्या? चेक कर लेता हूँ. At atmospheric pressure, water boils at 100. If the pressure is reduced, water will boil at lower temperature. Perfect. Yes. तो क्वेश्चन नंबर 6 पेंडिंग था, तो उधर भी लिख लो. iPad notes page 6. So with this, अपना assignment number 3, we have reached up to 54th question. Let us check 55. If it takes 15 minutes for an electrical heater to heat certain quantity of liquid of water from 0 to 100, it takes 80 minutes to boil this water into steam. Then the latent heat of steam is, उल्लू बनाने के लिए दिया है. टाइम उल्लू बनाने के लिए दिया है, राइट. लेटेंट हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम.
अब इसमें ऑप्शंस एकदम ट्रिकी है. दे हैव गिवन यू 540 टू हिप्नोटाइज यू. वो करेक्ट यूनिट है क्या उसके? जरा यूनिट्स देखो. किलो कैलोरी पर ग्राम रॉन्ग है, क्योंकि किलो कैलोरी पर किलोग्राम होना चाहिए या तो कैलोरी पर ग्राम होना चाहिए. मतलब फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में उल्लू बनाया. वैल्यू जानबूझ के 540 दिया बिकॉज देन यू आर हिप्नोटाइज्ड कि सर स्टैंडर्ड वैल्यू 540 है. बराबर बेटा, स्टैंडर्ड वैल्यू 540 है माना, लेकिन उसका यूनिट भी तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना. अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा वेट 100 है तो 100 क्या टर्न्स है, 100 क्या ग्राम्स है. आर यू गेटिंग दिस? तो मुझे बोलना पड़ेगा ना 100 किलोग्राम. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या तो कैलोरी पर ग्राम. इसका मतलब सेकंड ऑप्शन को छोड़ के सब कुछ रॉन्ग है, क्योंकि या तो उन्होंने न्यूमरेटर में गड़बड़ किया या तो डिनोमिनेटर में गड़बड़ किया. राइट? तो क्वेश्चन नंबर 55 को लिखो सॉफ्ट खोपड़ी. सॉफ्ट खोपड़ी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना था. लिखो उधर, दिस प्रॉब्लम नीड नॉट बी सॉल्व्ड, ऑब्जर्व द यूनिट्स केयरफुली. दिस प्रॉब्लम नीड नॉट बी सॉल्व्ड, observe the units carefully. So if they give two options in which the units are correct. Sorry, If there are two options in which the that units means it is a controversial question. No? नीट के पेपर में अगर दो ऑप्शंस करेक्ट है तो जो ये साल उन्होंने पंगा पे किया पागलपन की तरह, जब एनटी वालों को कुछ भी मिस्टेक नहीं मिला और उनका खुद का बहुत बड़ा मिस्टेक कवर करने के लिए उन्होंने फिजिक्स का बैंड बजा दिया. उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, उसमें दो आंसर्स करेक्ट क्यों दिया? दो आंसर्स करेक्ट दिया इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को 180 और 180 आया, तो एक ही आंसर करेक्ट हो. अभी कुछ स्टूडेंट्स ने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा, कुछ स्टूडेंट्स ने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा. स्टूडेंट तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहा है. तुम लोग बोलो कि कौन सा एनसीईआरटी सही था, 2023 की 2022? एनसीईआरटी बुक तुम लोगों ने बनाया, तुम लोगों ने बोला कि एनसीईआरटी इज अ रेफरेंस बुक, उसमें जो लिखा है वही लिखो. राइट? उसमें ऐसा बोला है ना कि सन इज स्मॉलर देन अर्थ, तो वही लिखो, उसमें मार्क्स मिलेगा. राइट? तो अगर दो ऑप्शंस करेक्ट तो उनका मिस्टेक है. तो एक्चुअली स्पीकिंग दे शुड ग्रांट मार्क्स, राइट, व्हिच दे डिड नॉट डू दिस टाइम, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मिस्टेक था. पब्लिकली मैं बोल रहा हूँ, पेपर लीक हुआ था तो उन्होंने अपना फॉल्ट छुपाने के लिए स्टूडेंट की बैंड बजाई. ओके, 55th क्वेश्चन समझा बेटा? असाइनमेंट नंबर 3 होगा. अच्छा, नाउ आई वाज ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे लिखे हुए सॉल्यूशंस एकदम परफेक्टली ब्यूटीफुल जो है मैं आईपैड नोट्स में लिखने वाला हूँ. तो मैं ये 2 पेज की जरूरत दे देता हूँ. फिर वेडनेसडे को, अभी मैं इसको प्रिंटिंग में भेजूंगा, मैं ये 2 पेजेस की जरूरत दूंगा. क्वेश्चन नंबर 45 टू 55 मेरे ओरिजिनल पेज की जरूरत दूंगा. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट नंबर 3. ना मतलब अपना इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज भी हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हो गया ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑन बॉइलिंग पॉइंट. सो दिस वाज वन वेरी बिग चंक based on latent heat of the substance and specific heat of the substance. On latent heat of the substance and specific heat of the substance. Book बंद करो बेटा. New article, calorimetry. Calorimetry. Now what is the meaning of calorimetry? Calorimetry is that science which talks about specific heat of the substance. Calorimetry is measurement of, जल्दी शिफ्ट हो जा, पीछे जा जल्दी. तुम लोग सारे लेक्चर में आज तू उधर कैसे चली गई? प्रमोशन हो गया तेरा? हाँ, जल्दी आ गई ताकि आगे नहीं बैठना पड़े, डांट नहीं खानी पड़े. चलो बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल, बुक्स बंद. कैलोरीमेट्री. Calorimetry is that science which talks about measurement of heat. And the most popular questions come on this, like this. 100 gram of ice at minus 10 degrees Celsius is exposed to steam, 20 gram, right, at 110 degrees Celsius. Then what will be the temperature of the mixture? Ice melts to water, steam condenses to water. Now water का temperature 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है. So depending on how much ice
is converted into water and how much steam is condensed to water, accordingly the problem comes, right? तो मैं एक एकदम लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसके ऊपर एंड देन यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स. बुक में एकदम बोरिंग मेथड देते हैं, बुक में लोग स्टेप्स वाइज देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. मैं जो मेथड सिखाऊंगा ना, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, बीच में मिलते हैं किधर. तो व्हाट इज दैट? यस और नो? 2 steps you move, 2-3 steps I am moving, let us meet somewhere. एक फ्रेंड बोरीवली से आ रहा है, एक फ्रेंड अंधेरी से आ रहा है, मिलते हैं गोरेगांव में किधर. ये अंधेरी वाला बोलेगा यार तू अंधेरी आना, फिर साथ में जाते हैं. ये बोरीवली वाला नहीं तू बोरी वाला, फिर चलो बीच में दोनों मिलते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड 1 step मेथड. इसमें खाली आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों चीज का मास वो लोग अलग अलग देते हैं और आपको सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम होने चाहिए. व्हाट आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज? Specific heat of ice, half. Specific heat of water, 1. Latent heat of fusion of ice, 80. And latent heat of vaporization of steam, 540. All these values which I was talking about, they were in thermal units. They were in thermal. मतलब किलो कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम, किलोग्राम पर सेल्सियस, calorie per gram per Celsius. So what is calorimetry? Calorimetry is that science which talks about measurement of heat. Usually it is used in calorimeter experiments, right? Where you need to find out the specific heat of the calorimeter. Usually the calorimeter is made out of copper. तो मैंने जो standard value दिया था ना, specific heat of copper is 0.1 calorie per gram per Celsius. So calorimeter experiment is the experimental verification how that value comes as 0.1. And the working principle is very simple. Heat lost by someone is heat gained by someone. Heat lost by someone is heat gained by someone. And over here, we have to assume that there is no loss of heat in the surrounding. Otherwise, the account will not match. Right? Government ने सेंटर से 5,000 करोड़ रुपीस भेजा पुअर लोगों की हेल्प के लिए और वो 5,000 करोड़ रुपीस पुअर लोगों को मिला. दैट मीन्स हीट लॉस इज हीट गेन. लेकिन बीच में पॉलिटिशियन 2,000 करोड़ रुपया खा गया, राइट? लोकल एमएलए 1,000 करोड़ रुपया खा गया. भेजा था 5,000 करोड़, मिला 5 करोड़. आर यू गेटिंग दिस? दैट इज नॉट अलाउड. ओवर हियर व्हेन वी से हीट लॉस इज हीट गेन, दैट मीन्स वी अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन द सराउंडिंग. सो फॉर दैट व्हाट दे डू when they perform the calorimeter experiment, ये बेटा calorimeter है, this is copper calorimeter. What they do is they keep this well protected in an insulating box. They put this in well protected insulating box, which is usually wood or asbestos or mica, because they are all bad conductors of heat. They use this is wooden box, or else this is mica box, or else this is asbestos. Over here they use electrical heating points, because ये चैम्बर में से हीट बाहर नहीं जाना चाहिए. These are the electrical points. They are connected to the supply, right? They are connected to the electrical supply. This is well covered with lead, and there are 2 holes in this. Through one hole a stirrer is passed, and through another hole a thermometer is there. Okay, and this front portion is a glass, transparent glass, so you can see the temperature rising or falling, because you have to say heat lost by someone is heat gained by someone, right? And 2/3 of this calorimeter, usually 2/3 of the calorimeter is filled with the liquid. Usually that liquid is the most favorite water. रीजन वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, इट कैन एब्जॉर्ब हीट वेरी नाइसली. तो ओवर हियर वी से दैट हीट सप्लाइड इज हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर. हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम is heat gained by calorimeter and water. Heat lost means what? It is heat supplied by the electrical supply. Yes or no? मान लो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, I2RT याद करो, या तो VIT याद करो, या तो V2 T/R. What is this? Electrical work done.
इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये यूजुअली जूल में होता है, ये यूजुअली जूल में होता है। I²RT या तो VIT, ये सुना है सब लोगों ने। अगर आपको इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 4200 योर नॉर्मल मेथड। सो हीट सप्लाइड इज दिस फॉर्मूला, हीट रिसीव्ड इज MC थीटा, MC थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। आर यू टेकिंग वाटर? You are taking water at room temperature, say 25 degrees Celsius. Now that water reaches up to 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, 70 degrees Celsius. Take care, water does not boil. Take care, water does not boil. So can you say heat lost is this, and heat gain is mass of calorimeter, specific heat of calorimeter, temperature difference, plus mass of water, specific heat of water, temperature difference. This is heat received. Right? This is heat received. By whom? Calorimeter and water. What is heat supplied? Heat supplied is this. Is it very clear? Super sure? पहले अपने नोट्स पे आ जाओ बेटा, अपने बुक पे आ जाओ पहले। बुक में you are on page number, theory notes. You are on page number 12. Question number 19 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, सिर्फ 21 पेंडिंग है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। खाली उसको पेंसिल से सर्कल करो, पहले 19 और 20 पढ़ो। योर बुक पेज नंबर 12 एंड 13, रिवाइज क्वेश्चंस 19 एंड 20 आराम से, बिकॉज आफ्टर दिस यू आर मूविंग ऑन टू आईपैड नोट्स। डायग्राम किया था स्कूल में, सब बोर्ड्स में, SSC, ICSE, CBSE, IB, IG, CSE। जिन्होंने नहीं किया था बेटा, रुकता हूं मैं 2 मिनट, आप ये डायग्राम कॉपी कर लो पेज नंबर 13 के बॉटम पे। अगर ये डायग्राम नहीं मालूम है, तो प्लीज कॉपी कर लो, आई एम वेटिंग। दिस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 53 मैं चेक करता हूँ, हाँ तब तक बेटा आप ये रिवाइज करो। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 53, लेट मी सी व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 53, ओके, क्वेश्चन 53 ना। कैन यू टेल मी द लाइन नंबर? क्वेश्चन में मिस्टेक ही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बॉम्बे, हाँ सेकेंड ऑप्शन में कैलोरी पर किलोग्राम रॉन्ग है, सारे ऑप्शंस किलो कैलोरी पर किलोग्राम। यस, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। एवरीबॉडी, असाइनमेंट 3 क्वेश्चन 53, सेकेंड ऑप्शन, उसमें सेकेंड वैल्यू किलो कैलोरी पर केजी में होना चाहिए, वो कैलोरी पर केजी में प्रिंट हुआ है। करेक्ट, थैंक यू। आंसर ऑप्शन सी है, बट शी इज जस्ट करेक्टिंग द ऑप्शन। आंसर तो ऑप्शन सी ही है। सर ऑप्शन पहले इंटरनल पूछा है, फिर एक्सटर्नल पूछा है। ओके, तो इंटरनल का आंसर आ रहा है 79.99। Li has to be greater than Li। हाँ, तो अगर बॉम्बे लाना है तो यूनिट करेक्ट करना चाहिए, और अगर सी लाना है तो वर्ड्स उल्टा पुल्टा करना चाहिए। एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। अगर बॉम्बे आंसर लाना है तो उसका यूनिट चेंज करना चाहिए, बिकॉज एज पर द क्वेश्चन उन्होंने पहले इंटरनल पूछा है, बाद में एक्सटर्नल पूछा है, तो इंटरनल शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल। तो पहले 79.99 आना चाहिए और बाद में 0.00264। परफेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या करना है तुम लोग डिसाइड करो। आंसर सी रखना है ना,
तो बेटा वो क्वेश्चन में वर्ड्स इंटरचेंज कर दो, इंटरनल को एक्सटर्नल कर दो और एक्सटर्नल को इंटरनल कर दो। और अगर बी रखना है, हाँ मतलब सोल्यूशन जो लिख के आएगा ना उसमें कोई भी एक ही लिख के भेजूंगा मैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सोल्यूशन में मैंने सी दिया है, तो सोल्यूशन में अगर सी लाना है ना तो बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड्स इंटरचेंज कर दो। मैं जो सोल्यूशन भेजूंगा उसमें मैंने सी दिया हुआ, तो उसके लिए क्वेश्चन में वर्ड्स इंटरचेंज करो। इंटरनल की जगह पे एक्सटर्नल वर्ड पहले होना चाहिए और एक्सटर्नल की जगह पे इंटरनल। थैंक यू सो मच, इट वाज अ मिस्टेक। तो दोनों क्वेश्चंस रीड करके हो गया। आर यू एडिंग द डायग्राम ऑफ कैलोरीमीटर? देन आई एम वेटिंग। स्कूल में किया था तो टाइम वेस्ट मत करो, ये कोई पूछता नहीं। ओके, आर वी नाउ ऑन असाइनमेंट नंबर 4। कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं आज। आर यू ऑन असाइनमेंट नंबर 4? आर यू ऑन असाइनमेंट नंबर 4? चलो शुरू करें। क्वेश्चन 1 आराम से, इजी। चलो आप लोग आंसर दो। इन कैलोरीमीटर व्हाट हैपेंस? द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर एब्सॉर्ब्स हीट, द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर एब्सॉर्ब्स हीट। यस, बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर एब्सॉर्ब्स हीट एंड बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर एमिट्स हीट। क्वेश्चन नंबर 2, द कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, हीट लॉस बाय समवन इज हीट गेन बाय समवन। Bombay's principle of mixtures. Principle of mixtures का मतलब ये होता है बेटा, 100 gram of water at room temperature is mixed with 70 gram of water at 75 degrees Celsius. Then what is the temperature of the mixture? Right? Or else, ice at minus 10 degrees Celsius, 100 gram is mixed with steam at 110 degrees Celsius, 50 gram. Then what is the temperature of the mixture? We are doing those problems today. So it is based on law of conservation of energy also and principle of mixtures also. अब because उन्होंने बोला है principle of mixtures, मैं बहुत ही simple formula introduce कर देता हूँ। बहुत ही simple formula introduce कर देता हूँ। Can I say mass 1, specific heat 1, temperature of 1. Suppose this is liquid number 1. This is liquid number 1 is mixed with liquid number 2, which is of mass 2, specific heat 2 and temperature 2. Then can I say this will be mass of mixture, right? Or as it is m1 c1 theta mixture plus m2 c2 theta mixture। सोचो, बिकॉज जब ये लिक्विड में मिक्स होगा तो टेम्परेचर ये भी नहीं रहेगा, टेम्परेचर ये भी नहीं रहेगा, टेम्परेचर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आएगा। समझा कि वापिस बोलो, m1 c1 theta 1। सपोज 100 gram of water at temperature 25 degrees Celsius is mixed with 25 gram of alcohol, और अल्कोहल का बॉटल फ्रीज से निकाला है 20 डिग्री सेल्सियस। तो विल यू गेट अल्कोहल मिक्स विद वाटर और उसका टेम्परेचर कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू होगा। तो बेटा राइट हैंड साइड क्या हो गया अभी, m1 c1 theta 1 plus m2 c2 theta 2 was left hand side, but your right hand side is m1 c1 plus m2 c2 common temperature, no? अभी दो लिक्विड मिक्स किए तो वो एक ही कोई कॉमन टेम्परेचर पे होंगे। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बेटा? इज ए m1 c1 theta 1 plus m2 c2 theta 2 upon thermal capacity of liquid number 1 and thermal capacity of liquid number 2। कितना सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं? अब इसके तीन पॉसिबिलिटीज है, एकदम सिंपल एंड क्यूट, एकदम सिंपल एंड क्यूट। अगर बेटा मासिस सेम है, दो लिक्विड का मासिस सेम है, मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 ग्राम ऑफ अल्कोहल मिक्स किया, तो जो सेम होता है वो फॉर्मूला से गायब हो जाता है। प्रूफ करूं? ये m है और ये m है, ये m है और ये m है, m कॉमन निकला, कैंसिल हुआ। एकदम सिंपल लॉजिक, जो सेम है ना बेटा वो फॉर्मूला से गायब। ये मैं वापस ओरिजिनल फॉर्मूला पे चला जाता हूँ, ओके? लेकिन ये दोनों सेम है, तो अभी मेरा फॉर्मूला क्या आएगा थीटा मिक्सचर का? कॉमन सेंस,
What is theta mixture? M गया C1 theta 1 plus C2 theta 2 upon C1 plus C2. I'm sure you can judge the next one. चलो next one क्या लिखूंगा मैं? If C1 is equal to C2, इसका मतलब मैं liquids same ले रहा हूँ, right? 100 gram of water at room temperature is mixed with 50 gram of water at 75 degrees Celsius. राइट तो वाटर लिया ना दोनों मैंने, तो अभी क्या कट हो जाएगा? सी कट हो जाएगा. फॉर्मूला बोलो बेटा. थीटा मिक्सचर जो कॉमन है वो आएगा ही. इज इट m1 थीटा 1 प्लस m2 थीटा 2 अपॉन. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और मान लो दो लिक्विड का मासिस भी सेम है और स्पेसिफिक हीट भी सेम. एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज 100 ग्राम ऑफ वाटर at 25 degrees Celsius is mixed with 25 gram of water at 65 degrees Celsius. तो 25 और 65 का average 45, right? 25 और 65 का average, समझा? So if third possibility, masses are also same and specific heats are also same, implies theta mixture is simple. Theta 1 plus theta 2 upon. So what is the logic? जो same है वो फॉर्मूला से गायब हो गया. जो सेम है वो फॉर्मूला से गायब हो गया. जो सेम है वो फॉर्मूला से गायब हो गया. तो हु इज द मेन फॉर्मूला? m1 c1 थीटा 1 प्लस m2 c2 थीटा 2 अपॉन m1 c1 प्लस m2 c2. शायद आईपैड नोट्स में दिया होगा, प्लीज चेक कर लो एक बार. अगर दिया है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. टाइटल होगा कैलोरीमेट्री. टाइटल होगा कैलोरीमेट्री. पेज नंबर 7 चेक करो बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड. पेज नंबर 7 लेफ्ट टॉप चेक करो, आराम से चेक करो, पॉसिबिलिटीज चेक करो. आई एम वेटिंग. टू लिक्विड्स कैन हैव सेम स्पेसिफिक हीट? नो. थोड़ा तो थोड़ा फर्क होता है. ग्लिसरीन, अल्कोहल, सम ऑयल्स, वेरी क्लोज वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक हीट बट नॉट सेम. चलो बेटा कैलोरीमेट्री चेक करो. पेज नंबर 7 लेफ्ट टॉप. बैक टू क्वेश्चंस. The second formula is theoretical. None of the liquids are the same specificity. नहीं, लेकिन तू बेटा पानी के साथ पानी मिक्स कर रही है ना इसमें. तो इसमें पानी के साथ पानी मिक्स करिए. उसने मुझे क्या पूछा कि इन प्रैक्टिकल लाइफ कैन वी हैव द लिक्विड्स व्हिच हैव द सेम स्पेसिफिक हीट? But the liquid is the same at different temperatures. हाँ, then only I gave the same example. 100 gram of water at room temperature is mixed with 50 gram of water at 75 degrees Celsius. तो दोनों को वाटर बोला ना मैंने. अभी मैं एकदम ठंडे पानी से नहा रहा हूँ, मुझे नहीं नहाना है, मुझे गर्म पानी से नहा. लेकिन एकदम गर्म पानी भी मेरे लिए रिस्की है, तो ठंडे पानी में गर्म पानी मिक्स करते ना, या तो शावर का वो हीटर एडजस्ट करते हैं. शावर पैनल में देयर इज अ नॉब. लेफ्ट साइड पे रेड डॉट होता है और राइट साइड पे ब्लू डॉट होता है. तो ब्लू डॉट मतलब कोल्ड वाटर, रेड डॉट मतलब हॉट वाटर. तो कितना कोल्ड रखना और कितना हॉट रखना है वो आपकी बॉडी को कितना टेम्परेचर सूट होता है इसके हिसाब से रखो, राइट? चलो बैक टू क्वेश्चंस. थर्मल एक्सपांशन असाइनमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 आंसर वाज दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 3 इज योर इंसल्ट. आंसर इज इट. क्वेश्चन नंबर 4 is your insult. This is just to make you feel good, okay? The exercise is just starting. So group एकदम pinky picture, बाद में red picture. Question number 5. Thermal capacity is the amount of heat required to raise the temperature of given mass of the substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. Option Bombay इसलिए गलत है क्योंकि वो 273 दिया था. Because when we talk about thermal capacity, is the thermal capacity, everybody here, is the thermal capacity dq upon dt, right? If the temperature difference is 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin, then can I say thermal capacity mc is dq? अभी definition पढ़ो, समझ में आ जाएगा. So question number 5 का answer is A. Question number 6 on the board. Question number 6 on the board. जूल पर केल्विन या तो जूल पर सेल्सियस. जूल पर केल्विन या तो जूल पर सेल्सियस.
अभी ये लोग इसको डेंजर ऑप्शन कैसे बनाते हैं मालूम है? ऐसे देते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेल्सियस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट। तो जहां पे जूल पर केल्विन लिखा था ना, उसके नीचे लिख लो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन आल्सो इज करेक्ट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन आल्सो इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चलो बेटा, यही लिखा मैंने, इसके लिए ही लिखा, इसके लिए ही लिखा। आंसर आना चाहिए दिल्ली, आंसर आना चाहिए दिल्ली। कैन एनीवन टेल मी बॉम्बे किसका डायमेंशन है? ये चैप्टर के हिसाब से, ये चैप्टर के हिसाब से परफेक्ट। इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन ये चैप्टर के हिसाब से, अदरवाइज तो कोई भी बोलेगा सर मास। इसलिए मैंने बोला कि ये चैप्टर के हिसाब से बॉम्बे किसका ऑप्शन है, बराबर। एंड व्हाट अबाउट सी? वर्क डन, वर्क डन। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, आराम से पढ़ो बेटा, सोच के बताओ। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, यू हैव टू बी केयरफुल। वाटर इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? नो। अमाउंट ऑफ वाटर? यस। तो या तो आंसर बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। सी और डी गया बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आंसर इज द वर्ड वाटर वॉज इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन रॉन्ग क्यों था? सब्सटेंस वर्ड अंडरलाइन करो, सब्सटेंस पहले में, और इसके लिए ऑप्शन ए के बाजू में लिखो फॉल्स। सी और डी में क्यों फॉल्स है बेटा? इसमें सब्सटेंस वर्ड की वजह से रॉन्ग है, और इसमें 100 डिग्री सेल्सियस की वजह से रॉन्ग है, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखने का, डोंट सर्च फॉर द करेक्ट आंसर, सर्च फॉर व्हाई अदर आंसर्स आर रॉन्ग, because usually theory questions में you have to be very alert, your concepts have to be very strong, right? So in this kind of questions, don't just search for why Bombay is correct, also prove why A, C and D are wrong. समझा बेटा सबको? Which question was this? 8th. Are we on 9th question? Easy. Water equivalent can also be. ऑप्शन सेम। हाँ तो एक काम करो ना, कोई भी एक टेम्परेचर को 10 डिग्री कर दो बेटा, या तो 100 डिग्री केल्विन रख दो, चलेगा। यू आर राइट, 10 डिग्री कर दो, बेटर है। 1, 10, 100। एक काम करो, ऑप्शन सी में वो 10 डिग्री सेल्सियस कर दो। ऑप्शन सी और डी सेम लग रहा है, करेक्ट है। तो एग्जाम में एडवांटेज मिल जाता है। एग्जाम में एडवांटेज क्या मिलता है? 2 आंसर्स करेक्ट नहीं हो सकते, और सी और डी सेम है, तो स्टूडेंट देखते आएंगे। तो इन अ स्टूडेंट के लिए फायदा हो गया अगर ऐसा क्वेश्चन प्रिंट हुआ तो। चलो बेटा 9th, वाटर इक्विवेलेंट इज आल्सो स्पेसिफिक हीट एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। थर्मल कैपेसिटी इज mc, specific heat of water is 1, so it is m into 1. Is it dq by dt also? So in a way it is thermal capacity. Water equivalent in a way is thermal capacity. Water equivalent में definition में water word आता है, so indirectly it becomes thermal capacity of the substance. You have to be very careful about the language. Water equivalent का जब मैंने definition करवाया था उधर खोपड़ी मार्क करवाया था, इसका definition थोड़ा confusing है, ध्यान रखना। Question number 10, यही तो पूछा था मैंने 7th में। क्वेश्चन नंबर 7th में मैंने 10 के बारे में ही पूछा था। 10th क्वेश्चन, चलो वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट केजी, therefore डायमेंशन m1 l0 t0। क्वेश्चन नंबर 12, मेक मी फील प्राउड, मेक मी फील प्राउड। अभी अभी फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा था, रब कर दिया। m1 c1 थीटा 1 प्लस m2 c2 थीटा 2 अपॉन m1 c1 प्लस m2 c2। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया ओनली 30 सेकेंड्स। चलो मेक मी फील प्राउड। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा मिक्सचर, राइट साइड पे सॉल्व करो बेटा। थीटा मिक्सचर इज m1 c1 थीटा 1 प्लस m2 c2 थीटा 2 अपॉन m1 c1 प्लस m2 c2, m1 c1 प्लस m2 c2।
दोनों वाटर है, मतलब C1 C2 आएगा ही. तो व्हाट इज द न्यू फॉर्मूला? m1 थीटा 1 प्लस m2 थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2. आपका आंसर C आया बेटा, C आया. बराबर. चलो टाइम सेव करते हैं. वेरी गुड. 12th में लिखो सॉल्व 13 एंड 21. 12th में लिखो सॉल्व 13 एंड 21. चलो अभी खत्म करके जाओ. 13 एंड 21 सॉल्व करो. आई एम वेटिंग फॉर यू. सॉल्व 13 एंड 21. आंसर मत बोलना, आई एम वेटिंग फॉर यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम हैवी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. तो आज का लेक्चर एकदम अच्छे से रिवाइज करके आने का. इसके बाद में इसका एक छोटा सा सब टॉपिक है हीट ट्रांसफर. अब वो हीट ट्रांसफर में उन्होंने क्या किया है, नीट वालों के लिए वो निकाल दिया और सीईटी वालों के लिए रखा है. तो मेरे लिए कॉमन सेटिंग ऑफ पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो वो हीट ट्रांसफर वाला असाइनमेंट में सेपरेटली डिस्कस करूंगा. राइट नाउ आई विल कैरी ऑन विद कॉमन टॉपिक्स व्हिच आर कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो ये चैप्टर में एक हीट ट्रांसफर टॉपिक में होल्ड पे रखूंगा. आफ्टर दैट I will be starting with your new book, which is KTG plus radiation plus thermodynamics. We will start with one very interesting topic, radiation. Very, very interesting. Chalo beta, 13 or 21. I am waiting for you. Are you getting the answer of 31S? Sorry, 13th S. बॉम्बे 33 डिग्री सेल्सियस. आया आया. एक तो कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि जो दो टेम्परेचर दिए होते हैं ना उसके बीच का ही कोई आंसर आता है. जो भी टेम्परेचर दिए हैं, अभी जैसे 12th प्रॉब्लम में टेम्परेचर दिए थे 10 एंड 50, तो अपना आंसर 10 और 50 के बीच में ही आना चाहिए. मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता था उसमें. क्वेश्चन 13 में एक टेम्परेचर 30 दिया है और एक 39 दिया है, मतलब मेरा आंसर 30 और 39 के बीच में है. ओह वाओ, दैट मींस नो नीड टू सॉल्व. दैट मींस नो नीड टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 13 लॉजिकल था. 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 39 डिग्री सेल्सियस. मतलब मेरा आंसर 30 भी नहीं आना चाहिए, 39 भी नहीं आना चाहिए, बीच में कोई तो आंसर आना चाहिए. एक ही ऑप्शन है, तो नो नीड टू सॉल्व. लेकिन एग्जाम में इतने प्यारे ऑप्शंस नहीं देते. एनीवेज ये दिस इज वन ऑफ द AIBMD क्वेश्चंस. तो लकी थे स्टूडेंट्स वो टाइम पे. चलो बेटा 21 का आंसर क्या आया? दिल्ली. दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. आया सबको कि सॉल्व करके बताओ? सेम फॉर्मूला यूज करो. चलो कम बैक प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इंसर्ट. In order to melt 1 gram of ice at 0 degrees Celsius completely, how much mechanical work is to be done? What is the formula? What is latent heat of fusion of ice? Question 14. 12, 13 और 21 हो गया सबका? 12, 13 और 21 हो गया. So come back. 14th question. What is latent heat of fusion of ice? 80 calorie per gram. Yes or no? And therefore, what is the work done? Work done should be Q is equal to ml. Yes or no? And this is calorie per gram. मुझे ऑप्शन दिया जूल में. सो दिस इज 80 कैलोरी के बदले इनटू 4.2 जूल पर ग्राम. 84 are 320. 80 into 0.6 is 16. 320 plus 16. 336 should be my answer. समझा क्या किया इन सिंपल लैंग्वेज? उन्होंने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया. कैलोरी टू जूल मींस 4.2. किलो कैलोरी टू जूल मींस 4200. So in this particular topic you have seen conversion factor was very, very important. When to use J and when not to use J was very, very important.
So question number 14 your answer was 336 joule. Question number 15 बेटा होल्ड पे रखो, थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा. क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लेवल पे डराया है स्टूडेंट्स को. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at -12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius. Specific heat of capacity of ice 2100 joule per kg per Kelvin. Oh my God. Is it not half? Is it half kilocalorie per kg per Kelvin? उन्होंने डराने के लिए क्या किया समझा? उन्होंने have we not done this question in the past? Ice at -10 degrees Celsius is to be converted into steam at 110 degrees Celsius हम लोगों ने किया था. उसके बदले उन्होंने ये प्रॉब्लम कहाँ पे स्टॉप किया है? स्टीम एट 100 डिग्री स्टॉप किया है, राइट? तो ये स्टेप गया. आपको ये प्रॉब्लम सेम स्टाइल में सॉल्व करना है. आइस एट -10 टू आइस एट 0, आइस एट 0 टू वाटर एट 0, वाटर एट 0 टू वाटर एट 100, वाटर एट 100 टू स्टीम एट 100. चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर. सॉरी, -12. okay, no problem, no problem. Ice at -12 to ice at 0, ice at 0 to water at 0, water at 0 to water at 100, water at 100 to steam at 100. First and third step change of temperature. Second and fourth step. अभी मेरा कमेंट सुनो इधर. Better to solve this problem. Better to solve this problem. बोलो कौन से यूनिट्स में इजी पड़ेगा? In heat units. And then convert the final answer in joule by multiplying by 4200. उन्होंने क्या किया मालूम है? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है बेटा? हाफ किलो कैलोरी पर किलोग्राम. उन्होंने डराने के लिए दिया 2100 जूल पर किलोग्राम. What is specific heat of water? 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर सेल्सियस, राइट? उन्होंने दिया 4200 या तो 4150, क्या दिया? हाँ, एकदम गंदा नंबर दिया, तो राउंड ऑफ, राइट? 4200 जूल पर केजी पर सेल्सियस. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. उन्होंने डराने के लिए क्या किया होगा? 80 to 4 of 336000. डरेगा ना स्टूडेंट? What is latent heat of vaporization of steam? 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. उन्होंने डराने के लिए दिया होगा 2268,000. Oh my God, 22,68,000. ये सब डराने के लिए दिया है, right? My suggestion: always solve this in heat units. Final answer को 4200. उन्होंने 4186 दिया है, तो 4186 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शंस एकदम दूर दूर है तो डरने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज 81 lakhs, सेकंड ऑप्शन इज 71 lakhs, थर्ड ऑप्शन इज 91 lakhs, फोर्थ ऑप्शन इज 61 lakhs. 10-10 लाख का फर्क है, तो कोई टेंशन नहीं है. समझा बेटा? श्योर? तो आपका आंसर आएगा सी. तो इसमें कमेंट लिखो. Better to solve in heat units to deal with simple calculations and then multiply the final answer by value of J. Better to solve this problem in heat units for simple calculations and then multiply the final answer by, okay? 17 प्रॉब्लम बेटा लेंगे. एक काम करते हैं, 16 पे स्टॉप करेंगे. 16 पे स्टॉप करेंगे. आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम मुझे याद कराना है. 15 पेंडिंग है और मैं 17 से कंटिन्यू करूंगा. हाँ, मैं 17 से कंटिन्यू करूंगा. होमवर्क? नो होमवर्क. रिवाइज इट. रिवाइज इट. कमिंग वीकेंड फिजिक्स वीकेंड है और मैं टफ प्रॉब्लम्स करने वाला हूँ. वेडनेसडे को वेरी टफ. स्टॉप.